Dear student, good morning to all of you. Today we will discuss about the plant tissue. Earlier you have seen that the plant contain a special type of tissue. The plant tissue are present in the plant. What are tissue? Tissue are the group of cells. A group of cells which perform specific functions are called as tissue. If the tissue is present in plant, that is called as plant tissue. Present in animal, that is called as animal tissue. So today we will discuss about the plant tissue. You can see here the plant tissue are especially two types, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लांट टिश्यू divided into two type, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue, the tissue which have ability of division, that is called as meristematic tissue. And the permanent tissue are the tissue in which cell loses the ability of division. Cell cannot divide. It gets specialized to perform a specific function. That's why it is called as permanent tissue. The meristematic tissue, on the basis of their location, it is divided into three parts: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. The permanent tissue, on the basis of its complexity, it is divided into two parts: simple tissue, complex tissue. Simple tissue divided into three parts: the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and the complex tissue, xylem and phloem. Now, one by one we will discuss about the meristematic tissue and permanent tissue. Here you see meristematic tissue. What I told, the tissue having ability of division are called as meristematic tissue. But the tissue which can divide to produce similar type of cells, the tissue which cell divide to produce similar type of cells are called as meristematic tissue. अब meristematic tissue on the basis of location. Apical meristem, it is present at the apex of shoot and root. The tip of the shoot and root contain apical meristem. Intercalary meristem near the node, at the node, and the lateral meristem, it is present in the vascular bundle, in the ring, and it plays important role in increasing the girth of the plant. And this apical meristem and intercalary plays important in increasing the length of the plant. Now next, here you see the apical meristem. Apical meristem present at the apex of shoot. When this divide, the number of cells will increase, then the length of the shoot will increase. Here intercalary meristem is present at the node and it also divide. When divide, then increase the length of internode, then the length of the plant will increase. Now you can see the lateral meristem here in the ring. Here is the lateral meristem in the ring. When the lateral meristem like cambium divide, they produce secondary phloem and secondary xylem, then the secondary tissue will develop, then the girth of the stem will increase. तो ये जो है एपिकल मेरिस्टेम पौधे की लंबाई बढ़ाने में, रूट की लंबाई बढ़ाने में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करके लेंथ ऑफ इंटरनोड बढ़ाने में, और लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड करके सेकेंडरी टिश्यू बनाए और सेकेंडरी टिश्यू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम. अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम एट द एपेक्स ऑफ शूट, और यहाँ एपेक्स ऑफ रूट आल्सो कंटेन एपिकल मेरिस्टेम. व्हेन दिस डिवाइड, then the number of cell will increase, then the shoot will increase in length and the root will also increase in length. Now the intercalary meristem, this is present near the node. When it will divide, then increase the length of internode. Ultimately the stem, the length of stem will increase. Now the lateral meristem, here it is present in the cambium, it is present in the vascular bundle, especially the lateral meristem is cambium and carp cambium that divide to produce secondary tissue, and this secondary tissue increase the girth of the stem. So as the plant grow, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसके तने की मोटाई में वृद्धि होती है. किसकी वजह से? ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. तो अभी आपने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों से पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी और लेटरल मेरिस्टेम से इसके चौड़ाई में, मोटाई में,
तने के मोटाई में, डाइकाट प्लांट है तो उसके तने के मोटाई में, डाइकाट रूट है तो उसके रूट के मोटाई में वृद्धि होगी। किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू कौन है। द टिश्यू which loses the ability of division and get specialized to perform specific function are called as permanent tissue। यहाँ पे जो ए टिश्यू है इसके सेल्स एबिलिटी ऑफ डिवीजन लूज कर देते हैं। दे कैन नॉट डिवाइड बट दे अंडरगो मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैरेन्काइमा, simple permanent tissue। You see the oval cell contain thin cell wall and intercellular space are present. This is parenchyma. This parenchyma are oval in shape, contain thin cell wall and they have intercellular space. So it is the parenchyma, loosely arranged cell we can say, and it plays important role in storage of food material. In the some cases, sometimes the parenchyma produce or synthesize chloroplast, then it plays important role in photosynthesis, then it is called as chlorenchyma। In the aquatic plant, जो जल में रहते हैं पौधे, उनमें जैसे हडीला है, this parenchyma becomes spongy and it contain air space, that is called as air chamber, and now it is called as parenchyma in the case of aquatic plant। अब कोलेनकाइमा is made up of thick cell wall। The cell of the कोलेनकाइमा have thick cell wall, there is no intercellular space। आप देख सकते हैं यहाँ पे थिकनिंग हो गई है सेल वॉल की, और थिकनिंग हो जाने से यहाँ कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो सेल है, इंटरसेलुलर स्पेस दो सेल के बीच में जगह नहीं है, क्योंकि सेल वॉल इनकी थिक हो गई, यहाँ पे सेलुलोज का डिपोजिशन हो गया। अब कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, it is found in the stem below the epidermis and it form hypodermis of the stem and it provide mechanical strength। कोलेनकाइमा देन कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है बिल्कुल थिक सेल वॉल्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं कोलेनकाइमा। अब यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ द thick cell wall cell and lignin and suberin are deposited, that's why it becomes very rigid। ये बहुत रिजिड हो जाता है और it provide the strength to the plant। अब ये स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रक्चर के आधार पे दो तरह का स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, जिसको स्क्लेरीड कहेंगे, और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। अब स्क्लेरेन्काइमा फाइबर वही स्क्लेरेन्काइमा फाइबर जाइलम में जाइलम फाइबर और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर बनाएगा। और जैसे हमने बताया था नाशपाती में ये स्क्लेरीड मीन्स स्क्लेरेन्काइमा सेल दैट इज कॉल्ड स्क्लेरीड, यह जो है बिल्कुल पार्टिकल्स की तरह होंगे, इनको स्टोन सेल भी कहते हैं। दिस स्क्लेरीड्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोन सेल। एंड नाउ अब आप देख सकते हैं कि लीफ का ये सेक्शन है। लीफ के सेक्शन में यह अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में मीजोफिल सेल, यहाँ वैस्कुलर टिश्यू, और बीच में यहाँ पे बिल्कुल लोअर एपिडर्मिस में जगह जगह गार्ड सेल, और गार्ड सेल दो गार्ड सेल क्या करेंगे, स्टोमेटा बनाएंगे। तो यह कॉम्प्लेक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एपिडर्मल सेल्स, देन द पॉलीसेट टिश्यू, then the spongy tissue, and here the vascular tissue, all are present here। Let us see here in the entire plant। आप देख सकते हैं कि जगह जगह में पत्ती में यहाँ पे क्या है, क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में मीजोफिल सेल में पॉलीसेट टिश्यू, स्पंजी टिश्यू, यहाँ पे जगह जगह गार्ड सेल है, उनकी वजह से स्टोमेटा, और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। पत्ती में भी वही चीज़ तने में भी है, तने में भी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, और इसके बाद यहाँ वैस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, और यहाँ पे रूट में भी वही चीज़ है। अब रूट में भी एपिब्लेमा, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और इसके बाद वैस्कुलर बंडल। तो आप देख सकते हैं कि इसके रूट में, स्टेम में, लीफ में वही सारे टिश्यू हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम आगे बात करते हैं
कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ये एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब ये दो तरह के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम जल वाटर, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट टू लीफ वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और फ्लोएम सिंथेसाइज फूड मटेरियल को लीफ से अदर पार्ट तक ले जाने के लिए। अब यहाँ जाइलम में दो तरह के पाइपलाइन है, एक तो वाइड है जिसको हम जाइलम वेसल कहेंगे, एक पतला है जिसको हम जाइलम ट्रैकिड्स कहेंगे। तो वाइड है, अगर अधिक मात्रा में पानी है तो दिस विल सप्लाई विद द प्रेशर, बट अगर वाटर की मात्रा कम है सॉइल में तो प्रेशर कम होगा। इसके लिए जाइलम ट्रैकिड्स भी हैं ताकि वाटर एटलीस्ट लीफ तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। सो द जाइलम वेसिल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अब यहाँ फ्लोएम देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिंथेसाइज फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट हैं, देखिए सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब्स में सीव सेल्स हो, सीव प्लेट हो गया, ये सीव ट्यूब्स हो गया। लेकिन इसके नियर बाई यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, मैंने बोला था पहले भी कि इन द फ्लोएम देयर इज द सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो सीव ट्यूब्स कंटेन सीव प्लेट्स, so the food material are translocated from leaf to other part of plant through the sieve tubes, and companion cell it contain nucleus and it plays important role in repairing of the sieve tubes. Next, अब फिर उसी का हमने अलग से डायग्राम ले लिया है। यहाँ जाइलम आप देख सकते हैं, जाइलम वेसल वाइड है, इससे वाटर जगह जगह पे पिटेड पोरस है, एंड द वाटर मिनरल विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू लीफ। और यहाँ पे ट्रैकिड्स थोड़ा नैरो है, और यहाँ पे जाइलम फाइबर। यहाँ फ्लोएम में भी आप देख सकते हैं कि यह सीव ट्यूब है, एक कंपेनियन सेल है, एक फ्लोएम फाइबर। अब इसमें पैरेन्काइमा किनारे में लगी होगी, पैरेन्काइमा किनारे में है। तो यहाँ भी 4 टाइप ऑफ टिश्यू, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। यहाँ भी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। अब यहाँ पे हम फ्लोएम को कम्प्लीटली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीव ट्यूब्स, यहाँ सीव प्लेट और ये कंपेनियन सेल, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसी से लगा हुआ क्या होगा, फ्लोएम फाइबर होगा। दिस फ्लोएम प्लेज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू रूट। इसको हम आगे भी देख सकते हैं। यहाँ हमने फ्लोएम और जाइलम दोनों को दिखाने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोएम का क्या है, सीव ट्यूब है। तो ये पत्ती में बना भोजन यहाँ से सुक्रोज आकर के कंपेनियन सेल से होते हुए कहाँ चला गया, सीव ट्यूब में। तो ये गाढ़ा है, यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड है, और जब कॉन्सनट्रेटेड है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कॉन्सनट्रेशन बढ़ गया, तो जाइलम से वाटर आ गया इसमें। अब वाटर आ गया तो ये मात्रा बढ़ गई इसकी सोल्यूशन की। देन फोर्सफुली इट विल ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये जाते रहेगा, माने जैसे शुगर आएगा यहाँ से जाइलम आ गया, क्योंकि यहाँ गाढ़ा है तो यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ शुगर ज़्यादा है, तो वाटर विल कम हियर। देन द ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल टेक्स प्लेस। अब ट्रांसलोकेशन में एनर्जी का भी एक्सपेंडिचर होता है यहाँ, और यहाँ वाटर मिनरल जाइलम से होके ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाउ द सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड, ए लीफ में सिंथेसाइज होकर के कैसे कंपेनियन सेल से होके कहाँ आया, सीव ट्यूब्स में, सीव ट्यूब से होकर के स्टोरेज ऑर्गन में जाके इकट्ठा हो रहा है। तो ये बाई डायरेक्शनल होगा, पत्ती से यहाँ आएगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से फिर ऊपर भी जा सकता है जैसी ज़रूरत होगी। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होगा, केवल एक ही दिशा में होगा जाइलम से। लेकिन फ्लोएम दोनों दिशा में जा सकता है, पत्ती से स्टोरेज ऑर्गन में, स्टोरेज ऑर्गन से फिर अदर पार्ट वेयर इट इज़ नीडेड, सुक्रोज वेयर इज नीडेड। अब आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेम है, स्टेम एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, यहाँ पे कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल है, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। तो हमने यहाँ पे फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम को दिखाने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं पूरा फ्लोएम का सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पे यह जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल से वाटर जा रहा है, जाइलम वेसल्स, जाइलम का जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, और यहाँ पे क्या है, यह बीच में कैम्बियम वाला हिस्सा है, यह फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। तो यहाँ पे फ्लोएम, बीच में कैम्बियम और जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम। तो फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, तो इसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है स्टेम का।
अब इसी को यहाँ दिखाया गया है, एक पौधे की जड़ से वाटर मिनरल कमिंग इनटू द जाइलम। यहाँ रूट हेयर एब्जर्व करके कहाँ ले आया, जाइलम में। अब जाइलम से होकर के पत्ती तक पहुँच रहा है। पत्ती में जैसे गया ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर वेपर के रूप में निकला। कहाँ से निकलेगा, पत्ती के स्टोमेटा से निकलेगा। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर होते रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि वाटर इज कमिंग फ्रॉम सॉयल थ्रू द रूट हेयर, देन कम्स इनटू जाइलम, थ्रू द जाइलम वेसिल एंड ट्रैकिट कम्स इनटू लीफ। और वाटर वेपर से जैसे बाहर निकलेगा स्टोमेटा से होके, अब यहाँ सक्शन प्रेशर होगा और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। सो जाइलम प्लेइंग इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल और फ्लोएम पत्ती में बने भोजन को टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये जाइलम है, जाइलम ये जो जाइलम वेसल्स हैं स्पाइरल है, पिटेड है, जाइलम वेसल्स अलग अलग आकार है। अब टिश्यू सिस्टम आपने देखा अभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब यहाँ पे टिश्यू सिस्टम मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म वन स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम, जैसे इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम फाउंड इन द epidermis of the leaf, epidermis of the stem and epidermis of the root। आपने यहाँ देखा है, यहाँ पे यहाँ इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पूरा इपीडर्मिस, यह गार्ड सेल, स्टोमेटा। तो यहाँ पे हमने पत्ती का एक सतह ले लिया, निचला सतह, ढेर सारे इपीडर्मल टिश्यू हैं। इसमें सब्सिडी इपीडर्मल सेल्स हैं, एक गार्ड सेल्स हैं और ये पेयर ऑफ गार्ड सेल फॉर्म स्टोमेटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इपीडर्मल सेल एक तरह की सेल हो गई, फिर गार्ड सेल दूसरी तरह की सेल हो गई। तो इपीडर्मल सेल और गार्ड सेल ये मिल करके ये जो है इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और यहाँ पे दो गार्ड सेल, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल, किडनी शेप्ड ए पेयर ऑफ गार्ड सेल यूनाइट टू फॉर्म वन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा से वाटर बाहर निकलेगा ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में वाटर वेपर के रूप में, और यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होंगे। तो यह जो है दिस गार्ड सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी लेवलिंग इसकी आ जाती है, इसको स्टोमेटल अपरेटस भी कहते हैं। इसको स्टोमेटल अपरेटस में क्या है, एपिडर्मल सेल, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल देखिए न्यूक्लियस, ए क्लोरोप्लास्ट। और ये गार्ड सेल दिन में क्या करते हैं, ये फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो स्टोमेटा खुल जाएगा और रात में फिर फ्लैसिड हो जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे दिन में, ये दिन के समय में यहाँ पे शुगर बना, क्लोरोप्लास्ट है तो शुगर बना तो नियर बाई सेल, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया तो नियर बाई सेल से वाटर आ गया इसमें। अब ये स्वेलअप हो गया तो फैल गया एकदम से। और जब रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ये शुगर था वो तो स्टार्च में बदल गया और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, फ्लोएम के द्वारा दूसरे पार्ट में चला गया। अब यहाँ पे जो है यह वाटर जो आया था वो चला आया नियर बाई सेल में, अब ये फिर पिचक गए और स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन क्यों दिखाया गया है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस, एपिडर्मल सेल में नहीं है, लेकिन गार्ड सेल में न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। द गार्ड सेल डू फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा तो एक ओपनिंग है, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल फॉर्म स्टोमेटा। अब कुछ जो तने होते हैं, पुराने स्टेम होते हैं, उसका बाहरी हिस्सा देखिए क्रैकिंग हो जाता है, बिल्कुल डेड सेल होते हैं। तो ये मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि क्रैकिंग हो गई तो नीचे वाले टिश्यू को प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो ओल्डर रूट, ओल्डर स्टेम में जो है मल्टी लेयर्ड द रैप्चर टिश्यू आर प्रेजेंट, दे फॉर्म कार्क। ये जो है कार्क कैम्बियम जो है डिवाइड करके बाहर की तरफ कार्क बनाता है, वही कार्क यहाँ पे दिख रहे हैं। ये डेड सेल्स हैं, दीज आर द डेड सेल प्रेजेंट इन द ओल्डर स्टेम। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट एक स्टेम, जैसे स्टेम है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो ये क्या होगा, यह ट्रांसवर्स सेक्शन राउंडेड आएगा। तो इसका हमने एक पार्ट ले लिया। आप देखिए सबसे बाहर इपीडर्मिस से मल्टी सेलुलर हेयर आर हियर एंड बिलो द इपीडर्मिस द कोलेनकाइमेटर सेल, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस दैट फॉर्म हाइपोडर्मिस। कोलेनकाइमेटर सेल्स क्या बनाएगा, हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के नीचे यहाँ पे कॉर्टेक्स है जो पैरेनकाइमेटर सेल से बना है, यहाँ रेजिन कैनाल भी है। अब कॉर्टेक्स के ठीक नीचे बैरल शेप्ड सेल, इट फॉर्म द एंडोडर्मिस,
और एंडोडर्मिस की जो वाल होती है कैस्पेरियन बैंड से घिरी होती है, और जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस द पेरिसाइकिल दैट इज स्क्लेनकाइमेटस, एंड बिलो द पेरिसाइकिल देयर इज फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिंथेसाइज फूड मटेरियल, एंड द कैम्बियम इज द लेटरल मेरिस्टेम, यह डिवाइड होकर बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, और उसी से फिर ग्रोथ होगा तो ये पूरे तने की मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। और जाइलम, यहाँ पे जाइलम देख सकते हैं आप, मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड, प्रोटोजाइलम इनसाइड, दो एग्जॉग जाइलम है, और यहाँ पे जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल। तो फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम ये पूरा वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब सेंट्रल पार्ट में, ए सेंट्रल पार्ट में क्या है, पिथ है। पिथ इज आल्सो मेड अप ऑफ द पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो आपने देखा कि इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यहाँ पे यह कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, द कार्टेक्स, हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स एंड पिथ, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। एंड द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन है, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, स्पेशली फ्लोएम एंड जाइलम, इट फॉर्म वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।